آج کے اس ڈائلاگ مکالمے کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا جناب عبید الرحمان سلمانی صاحب۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ صوبائی اسمبلی نے کہ صوبہ ہزارہ کو بنایا جائے، اس کو کریٹ کیا جائے اور ریزولوشن پاس کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجی گئی۔ اس کا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہزارہ کے باسیوں کی ایک اشروں کی ایک دہائیوں کی جدوجہد ہے جس کے نتیجے میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی، لیکن یہ کوئی پہلی ریزولوشن نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی 2014 میں اور 2022 میں اسی اسمبلی نے صوبہ ہزارہ کی کریشن کے لیے ریزولوشن پاس کی۔ ہزارہ کا صوبہ وائبل ہے؟ کیا یہ صوبہ لسانی بنیادوں پر یا ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر اس کو تخلیق کیا جائے، یا ہم لوگ ہزارہ کے باسی 80-90 لاکھ کی جو آبادی ہے ہزارہ کے اندر 9 اضلاع پر مبنی ہے، کیا ہم لوگ ڈو وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو رن اے پروونس، ٹو رن این انڈیپینڈنٹ پروونس؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کا مکالمہ جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے آرگنائز کیا ہے۔ بنیادی تو وہاں پر کرواتے رہے ہیں اور اس طرح کی ایونٹس ہم پورے پاکستان میں کروا رہے ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایک رائٹ بیسڈ آرگنائزیشن ہے جو 2005 سے لوگوں کے حقوق کے اوپر کام کر رہی ہے، یا ان کی فیملیز، یا وہ لوگ جن کے ساتھ مختلف قسم کا تشدد ہوتا ہے، وہ لوگ، یا وہ لوگ جن کے پاس کسی طرح کے حقوق نہیں ہیں۔ تو یہ کام ہمارا گزشتہ 20-25 سالوں سے جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کے لاز بنتے ہیں، اس کے اوپر ہماری ایک کریٹیکل انالیسس ہوتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ جیسے ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ پریونشن اینڈ پنشمنٹ ایکٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے اس کی کام کر رہے ہیں۔ اس طرح ایک انٹرنیشنل لا ہے جو ٹارچر کو روکنے کے لیے پوری دنیا میں بنایا گیا، جسے استنبول پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ تجویز کا میں تھوڑا سا اس کو صوبے کے قیام کو ایک مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں۔ یہ کوئی لسانی یا نسلی بنیادوں کی بنیاد پر نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی کی صوبے موجودہ صوبے میں کسی کی اجارہ داری سے فرار پر مبنی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہزارے کو، اس کی کمپوزیشن کو، تو اس میں جو اقوام ہیں میرا خیال ہے صوبہ سرحدی نہیں پورے پاکستان میں یہ ایک منفرد کہ ساری قومیتوں کی جو منتخب خاندان ہیں وہ ہزارے میں ہیں۔ خاص طور پر ہماری جو ایم پی اے جو بہنیں ہیں اپنی لاس چھوڑ کے آئی ہیں، اور باقی تمام جو یہاں پہ آنریبل ہمارے گیسٹ ہیں، مختلف جماعتیں سے ہیں، مختلف گروپ سے ہیں، میرے جرنلسٹ دوست جو ہیں انہوں نے بھی وقت نکالا۔ ان سب کا قیمتی وقت ہے آپ نے ٹائم نکالا اور ایک امپورٹنٹ موضوع پہ آج بات کریں گے۔ تقریباً باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، ان کے وسائل کی بات ہو چکی ہے۔ ہزارہ کے امجد الزمان خان نے بھی اس پہ ڈیٹیل سے بات کی ہے، اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی دے دیا ہے انہوں نے کہ یہ بنیادی طور پہ ہزارہ ماضی میں کیا تھا، 1901 سے پہلے کیا تھا جب NWLP بن رہا تھا۔ تو سارے اگر ان کے اسپیکٹ کو دیکھا جائے تو اس کی اکنامک ویبلٹی بھی موجود ہے۔ اب مشکلات کیا ہیں، ہم نے کس طرف جانا ہے؟ 2-3 آپشن ہیں اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ صوبے میں موجود ہے یا ہے جو پہلی برسی تھی، تو شہدائے ہزارہ کی جب پہلی برسی تھی 2011، وہ 28ویں ترمیم کے ذریعے وہ شیخ جو ہے اس کو نکال کے یہ اختیار جو ہے وہ صوبہ اپنے پاس لے لے اور مرکز اپنے پاس لے لے، اور مرکز جو ہے یہ فیصلہ کرے کہ فیوچر میں کتنے صوبے بننے چاہیے۔ جیسے ابھی بات ہے، اگر اب کی بار جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے وعدوں کا ایفا کرتی ہیں، تو نئے انتظامی یونٹس اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتظامی بنیادوں پہ بننے کی ضرورت ہے تو ان کے لیے بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھے مقصد آنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کی توفیق کے بغیر ہوا پر کبھی نہیں ہلا سکتی۔ میں سب سے
ये इस अच्छे काज के लिए वर्कशॉप का खूबसूरत जब इस चीज पर इत्तेफाक हुआ तो तमाम लोग आगे दफ्तर बंद गाड़ियां ANP वालों ने खुदों से भेज दी। नारे के साथ इसको खत्म करता हूँ। एक ही नारा अजीब आवाज आई, इतना होया मजा ना आया ना। एक ही नारा एक बड़ी मुफीद और वक्त की जो ज़रूरत थी उस पर एक डायलॉग का आगाज़ किया। बहुत सी बातें ऑर्गेनाइजर्स ने ख़ुद कर दी हैं, हमारे लिए शायद इतना मटीरियल नहीं छोड़ा। जहाँ तक सूबों के क़याम का ताल्लुक है तो थोड़ा सा 2 मिनट में लूँगा। पाकिस्तान के क़याम के 7 या 8 साल बाद पहला अमल जो शुरू हुआ वो सूबों को कम करने का शुरू हुआ। उसकी पहली इब्तदा 1 यूनिट बनाकर की गई। आपकी मालूमात के लिए शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि उससे पहले भी यहाँ फ़ायज़ा बीवी बैठी हुई थी, उनको इस पर थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए। इनके इलाके रिचमैन के इलाके से एक शख्स थे, इकबाल नामी, वो बड़े स्कॉलर थे उस वक़्त, बाद में अमेरिका में जाकर सेटल हो गए। सुबह पाकिस्तान की मूवमेंट बड़े वसी पैमाने पर चली। अहमद ज़मान खान ने मुफ्ती साहब का नाम लिया तो मैं ज़रूर यहाँ पे पीज़ादा दाऊद शाह हमारे एक सीनियर एडवोकेट थे घाटावे के लिए, इससे पहले कभी मुनक़द नहीं हुआ। एनीवे ये थोड़ा सा पस मंज़र था। अब जहाँ तक आज के मौजू की बात है तो ये चूँकि आप बात दस शुरू हो चुकी है 28वीं तरमीम की, उस तरमीम के लिए नए सूबों के क़याम के हवाले से थोड़ा सा इससे पीछे जाएँ तो उस पेपर को आप सब लोग ज़रूर पढ़ें। ज़िया-उल हक के दौर में मजलिस शूरा थी जो इलेक्टेड एक फोरम नहीं था, असम्बली का मुतबादल बनाया गया था। वहाँ पे जस्टिस अंसारी थे, उनकी सरबराही में एक कमीशन बनाया गया था। अंसारी कमीशन रिपोर्ट आप सबको इस सूबे के हवाले के तनाज़ुर में ज़रूर स्टडी करनी चाहिए। यानी कि जिस तरह से दफ्तर साहब ने पॉइंट आउट किया कि जी 2 मुख्तलिफ टॉपिक दिए गए हैं, एक डायलॉग ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस और दूसरा जो है सूबा ज़ारा का क़याम। हालांकि दोनों एक ही बातें हैं, शायद उनको थोड़ी सी गलतफहमी हुई। बेसिकली जो हम मुतालबा कर रहे हैं, जिस फोरम के लिए हम बैठे हैं, इस फोरम पे कि जी सूबे ज़ारे का क़याम होना चाहिए और उसी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके जिस तरह के हमारे मसाइल हैं, जिन मसाइल की बुनियाद पर हमें एहसास महरूमी है और हम ये समझते हैं कि सूबा ज़ारा बनना चाहिए। पेश करता हूँ और मैं अपनी जमात मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की जानिब से आज यहाँ पे नुमाइंदगी के लिए हाजिर हुआ हूँ। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर मोहतरम मरहूम सेनेटर साजिद मीर रहमतुल्लाह अलैह इस हज़ारा सूबा के क़याम के लिए मुख्तलिफ इजलासों के अंदर तर्जमानी कर चुके हैं। उसके बाद मौजूदा अमीर मोहतरम हाफिज़ अब्दुल करीम साहब की मुलाकातें सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ और बाकी अहबाब के साथ भी हो रही हैं, हो चुकी हैं। ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डायरेक्टर साहिबान का मैं मशकूर हूँ और उन्हें ये प्रोग्राम मुरतब करने पर मुबारकबाद देता हूँ कि आपको भी ख्याल आया हज़ारे के हकूक़ का, हज़ारे के आवाम की तकलीफ़ों का, आपके भी दिल में दर्द हुआ, आपने भी ये प्रोग्राम मुरतब किया। मैं आपको इस बात पर मैं ये कहूँगा कि सूबा ज़ारा के काज के लिए सबसे पहले सन 87 में मालूम उमर कासफ की काफियों को मैं सलूट पेश करता हूँ। उस वक्त मैं भी उसके साथ था। उसके बाद उसके वफात पाने के बाद कुछ अर्से के बाद ये तारीख खामोश हो गई थी। फिर बाबा मरहूम सरदार अहमद साहब आए, उन्होंने इस तारीख को अरूज पे पहुंचाया। इन्विटेशन मिली जिसमें हमने भी आकर पार्टिसिपेट किया। तमाम मुकर्रीन को बड़े अच्छे अंदाज में उनकी तकरीर सुनी और उनके मौक़िफ़ को सुना और उसके बाद अपना एक जहन में ये बात आई कि इनका जो मौक़िफ़ है ये बिल्कुल ठीक है
क्यों? हम अगर कराची जाते हैं, हमसे लोग पूछते हैं आप कहाँ के हैं, हम कहते हैं कि हम हज़ारा के हैं। जब हम किसी और जगह जाते हैं वो कहते हैं अच्छे तासो पंजाबी आमदे, हाँ जी, तो हमारे अंदर भी एक चीज़ आती है कि कम से कम मतवाज़न तरक्की के लिए भी हमारा एक सूबा होना चाहिए। ख़वातीन ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े अच्छे मौजू पे इसका इलाक़ का एहतमाम किया, हम उनके मशहूर हैं। मेरा नाम इंजीनियर रहमान है और मैं चेयरमैन हूँ सिटीजन ट्रैफिक कमेटी ऑफ रबात का, और बड़ी खुशी हुई कि मेरे साथ मेरे जैसा शख्स अपने आप को कतन इस काबिल नहीं समझता कि इतने हाईली क्वालिफाइड और इतने एक्सपीरियंस्ड और अपनी अपनी फील्ड के प्रोफेशनल्सों के सामने कोई अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकूं। लेकिन फिर भी गुज़श्ता कुछ अरसे के तजर्बात की बेस पे मैं बाकी तो बातें अब हमारे बुजुर्गों ने और भाइयों ने बहुत अच्छी कही, मैं सिर्फ जो सर्विसेज डिलीवरीज हैं हमारे, हाँ, उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं यहाँ पे, उनको जो सर्विसेज हैं उनसे डिलीवरी क्यों नहीं सही तौर पे हो रही, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किसी और के हाथ में है और जो एडमिनिस्ट्रेड हैं लोग वो कुछ और लोग हैं, जिस वजह से बहुत बड़ा खला है। अगर मैं यहाँ का किसी इदारे का बैठा हूँ मेंबर या बड़ा, तो मुझे खुद पता है साइकोलॉजिकली सोशली कि यहाँ लोगों के क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं शायद उनको बेहतर तौर पे टच कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, बनस्बत एक बंदा कहीं और से आए तो 200-400-500 किलोमीटर दूर से उठ के आए, उसको पता भी ना हो कि ये क्या किस्सा, क्या कहानी, कहाँ रास्ता कौन सा वगैरह वगैरह, तो शायद वो उस तरह इफेक्टिवली हल ना कर सके जितना लोकल कर सके। मैं सबसे पहले तो ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का और दीगर उनके साथियों को मशहूर कि उन्होंने आज मेरे ख्याल में पहली दफ़ा एक अच्छा मुकालमा रखा है सूबा हज़ारा का क़याम लसानी या इंतज़ामी यूनिट पे। असल इस वक्त ज़रूरत इन कामों की है, और मेरी सबसे पहली ये तजवीज़ होगी अगली गुफ्तगू करने से, आज के ही इस मीटिंग में आपने जो बुलाई हुई है, एक आप सूबा हज़ारा के लिए थिंक टैंक बना दें। असल में हम नारे तो सारे मारते हैं, कोई नारा सूबा हज़ारा है तो आगे से जाके कोई पूछे तेरा गुजारा किस नाम उसी तो फिर उसका कोई इसका जवाब कोई भी नहीं। हकीकत जो है उसको तस्लीम करना चाहिए। इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया हुआ है। आप देखें पिछले दिनों सूबा हज़ारा तहरीक की, जहाँ पे हमारे MNA MPA बैठे थे, वहाँ पे ये बात चल रही थी जी को वो हम जब इसको चलाएंगे कैसे, इसकी बुनियाद कैसी होगी इंतजामी। अब ये सोच आप देखें कि जिस कौम के नुमाइंदों की ये सोच है कि उनके पास अभी तक कोई प्लान नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जो अदालतें हैं वो तहसील की सतह पे चले जाए, इसी तरह तमाम महकमाजात आप देख लें, तमाम 30 महकमे आते हैं सूबे के नीचे, तो वो जब वहां पे जाएंगे तो लोगों को डिलीवर होगा, आपके लोग वहां पे बैठे होंगे तो फिर डिलीवर होगा। जिस तरह कि पिछले अखबार में हमने रोला डाल के निगरान हुकूमत में भाई हजारेबाग तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, अब क्या हुआ, जो भी वो जनाब सरकार आई दूसरी, उन्होंने इनको उठा के फेंक दिया। तो ये बेसिकली दुनिया में भी, और यही बात आप रियासत मदीना को उसका दस्तूर पढ़े लोगों से मुतमिन से कि भाई जो एजेंडा दिया जाए, जिस मुकर्रर को आप बुलाएं उससे कहें भाई इस पे बात करें ना। अब मैं यहाँ से अमेरिका की सियासत शुरू कर दूं तो फिर एजेंडा तो गया ना, जो एजेंडा दिया है उसके ऊपर, और इंशाल्लाह एज ए जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट और सीनियर वाइस चेयरमैन तरीके इंकलाब सूबा हज़ारा, मैं आपकी काविश को सलाम पेश करता हूँ और आपकी टीम का हिस्सा हूँ। हम तो सीखने वाले लोग हैं, जहाँ पे भी आप बुलाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, और अगर मैं इस कुर्सी से शुरू करूं और उस कुर्सी तक जाऊं तो सारे वो नगीने बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत आला काम किया, और इनके पीछे मुझे एक हजूम लगता है। ये ज़रूर बताती चलूँ कि मैं ज़रूर सूबाई असेंबली की मेंबर हूँ, लेकिन मैं ज़मीन से ही उठ कर गई हूँ, ग्रास रूट लेवल से गई हूँ, और मैं आज भी वही शाजिया जुनून हूँ जिसने इतने साल पहले तक दो शुरू की थी और 30 सालों की मुसाफिर के बाद यहाँ नहीं है कि ज़कात लें। हमें वो काम करने होंगे जो हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छे हों।
आज सुबह हज़ारा की अगर बात करें तो इसमें सारी कौमें आबाद हैं। आप जदून देख लें, सवाती, गुजर देखें, अवान बरादरी देखें, कश्मीरी देखें, यहाँ बसते हैं, कोहिस्तानी देखें और ज़बानें सारी बोली जाती हैं। इनको का देख लें आप उसमें गोजरी ज़बान को देखें, आप उसमें शीना ज़बान को देखें, सारी ज़बानें हमारे हज़ारे में बोली जाती हैं। और जहाँ तक वसाइल की बात की जाए, हम वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ, इंतज़ामी अमूर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कानून, जो पाकिस्तान का आइन है, कानून है, वो मौजूद है। अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी? तारीखें भी चली गई, लोगों की कुर्बानियां भी होगी, जान भी कीमती चली गई, तहरीक चल भी रही है। अब सोचना ये है, करारदाद भी ऑलरेडी, जिस तरह मौलाना साहब ने बात की तो हमें उन्हें बताते चले। सबसे पहले तो करारदाद असेंबली में सरदार यूसुफ साहब ने पेश की थी, उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। हम किसी को भी नहीं क्रिटिसाइज करते, किसी जमात को भी, क्योंकि हमारा सूबा है, हमारा वतन है, हमारे ये खूबसूरती है, हमारे पहाड़ हैं, हमारी मट्टी है। और इस मट्टी की खूबसूरती पर, इसके वसाइल पर, इनके ज़खायर पर, इनके इदारों पर हमारा इसलिए घबरा रहे हैं कि जब नया सूबा बनेगा तो उसके लिए सारे इंतजामात नए होंगे। उसमें आप देखें, उनको हर चीज नहीं बनानी होगी, वो उस चीज से घबरा रहे हैं। हमें उन्हें बताना है कि हमारी जरूरत क्या है और आसान जबान में अपने लोगों को ये रियलाइज करवाना है, बताना है। सादा जबान में अपने नौजवानों को, अपनी बहनों बेटियों को बताना है कि सूबा जरूरी क्यों है और काम कौन कर सकता है। आज अगर हम वहां बैठे हैं केपी असेंबली में, तो सबसे पहले ये एजाज हमें हासिल है कि हम बहनों ने जाते ही सूबा हज़ारा की दोबारा करारदाद पेश की, उस पर फिर दोबारा डिबेट्स हुई, उस पर दोबारा बहस हुई। अब कानूनी तौर पे हमने कानूनी ढांचा तैयार करना है, अपने लोगों को साथ, हर शोबे के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो हमें बना कर दें एक बाकायदा ढांचा कि इस पर कमियां कहाँ हैं। मैं समझती हूँ उन्हें मुतहद होने की जरूरत है। जब तक उन्हें बुला के अपने साथ हम बिठाएंगे नहीं, इन चीजों को जो बहुत अहम है, जरूरी है, उनके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो समझेंगे कि हमें कोई पूछ नहीं रहा, बुला नहीं रहा। सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से तल्लुक रखते हैं, हर तबके फिक्र को हमारे साथ आके बैठना चाहिए। अगर ये तहरीक कराची से शुरू हो गई है तो हज़ारेवाल भी इंशाल्लाह करेंगे, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ी हम जरूर करेंगे। जिस तरह सर ने बात की, मैं ये समझता हूँ कि आज इस मौजू पे एक सैर असल गुफ्तगू जरूर हुई है, लेकिन आज के इलाज से जो अच्छी बातें हुई हैं उनको सब ने सराहा है। कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो एक दो कमियां नजर आती हैं, मैं बजाय इसके कि हज़ारे की वो जो तहरीक है या सूबा हज़ारा जो बनाना है और उस पर बाकी लोगों के कुछ पॉइंट्स जाकर रिपीटिशन में जाऊँ। देखिए, एक बात मैं ये समझता हूँ कि इखलाकियात के एतबार से भी मुनासिब नहीं है कि एक आदमी सबसे पहले आ जाता है और वो आखिर तक बैठा रहे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अमजद खान की जो बात है, उन्होंने कहा कि इसके बाद आगे क्या होगा। हमारे यहाँ अफसोस इसी बात का, मैं अक्सर जितनी ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं, मैं अफसोस इसी बात पर करता हूँ कि उनकी हद तक तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो जाता है, उसके बाद उस प्रोग्राम पर कुछ भी नहीं। कि ये जो तहरीक, जिसको हम कहते हैं कि ये तहरीक चलेगी और सूबा हज़ारा बनेगा, पहले हम तो ये देखें कि हम कौन हैं, क्या हैं, हमारे पास क्या इख्तियारात हैं, हमारे पास क्या ताकत है कि ईवानों में जो बैठे लोग हैं, क्या उन ईवानों तक हमारी रसाई है, क्या उनकी पॉलिसीज़ को हम तब्दील कर सकते हैं, क्या वहाँ पे हम कोई ऐसा अपना असर रसूख डाल सकते हैं। मैं समझता हूँ नहीं डाल सकते। अगर हम डाल सकते हैं तो आज GDA पे आप रो रहे हैं, MTI पे आप रो रहे हैं, आपके पास इतने इख्तियारात होते तो आपके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मेंबर आपके हज़ारा ही से जाते हैं। फिर उसके बाद एक कमीशन बन जाता है कि भाई उनकी जो शहीद हुए हैं उसकी जुडिशल कमीशन बना। उस जुडिशल कमीशन के अंदर आपके अपने हज़ारा के लोगों ने कहा कि ये क्रॉस फायरिंग से जो है वो लोग शहीद हो गए और आपके साथ भी शामिल है इसमें। आप मुझे बताएं कि उस जुडिशल कमीशन को आप सूबे की बात करते हैं, उस जुडिशल कमीशन को किसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज किया कि ये जुडिशल कमीशन का फैसला गलत है, इन्होंने सही तरीके से इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की। हम सूबे की बात करते हैं, पहले हम अपने आप को देखें कि इस छोटे से एबटाबाद के अंदर हज़ारे के अंदर रहते हुए हमने अपने इख्तियारात को किस हद तक मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल किया और आगे जाकर हम उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। हम तो कहते हैं कि सूबे बिल्कुल करने चाहिए, हर सूबे के प्रो एंड कॉन्स हैं। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है,
اور مجھے پیپلز پارٹی کو اس بات کا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے آپ سب جغرافیائی سرحدیں جو ہیں وہ درست ہیں. ہم ریزولوشن کی بات کرتے ہیں تو اس ریزولوشن کو پیش کرنے کے لیے صرف کاغذ پہ ریزولوشن لکھ کے پاس کرتے ہیں کہ صبح بن جانا چاہیے. ریزولوشن اس طرح پیش نہیں ہوتی. ریزولوشن پیش ہونے کے لیے آپ کو چاہیے آپ پورا ہوم ورک کریں, اس کی جغرافیائی باؤنڈریز کی تقسیم کریں, اس کی پاپولیشن کی تقسیم کریں, اس کے وسائل اس ریزولوشن میں لکھیں, اس میں آپ پوری مینجمنٹ اسکیم اپنی لکھیں, اپنے فائنینشیل ریسورسز آپ لکھیں, اس ریزولوشن کو مؤثر طریقے سے پیش کریں. جب وہ 2 تہائی اکثریت سے پاس ہو پھر اس کو آپ پارلیمنٹ میں پیش کریں. لیکن ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں بات سننے کی کرتی ہیں, لیکن جب اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی بات آتی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کی پالیسی کے اوپر عمل کرتے ہیں, پھر صوبے ہزارہ کی نمائندگی وہ نہیں کرتے, تو نہ اس پبلک کی نمائندگی. آج ہم سب یہاں کسی سیاسی نعرے کے تحت جمع نہیں ہوئے, بلکہ انسانی حق, آئینی انصاف اور باوقار شناخت کے لیے جمع ہوئے ہیں. جیسا کہ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں کہ اگر تم سچ کی تلاش میں ہو تو سوال کرنا سیکھو, اور آج ہم سب یہاں اسی تلاش میں جمع ہیں. آج کا اصل سوال یہ نہیں کہ صوبہ ہزارہ بن سکتا ہے کہ نہیں, بلکہ آج کا اصل سوال یہ ہے کہ کیا انصاف کو عوام کے قریب لانا کوئی جرم ہے. اپنے پرانے بوسیدہ نظام پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہیں تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کا دن ہے کہ پاکستان بھی اپنے پرانے لاغر نظام پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے. پورے اعتماد سے کہتی ہوں کہ صوبہ ہزارہ ہماری تاریخی ضرورت اور انسانی ضرورت بھی ہے. میرے دلیر بھائیوں, ہزارہ کی دھرتی پر 80 لاکھ روحیں سانسیں لیتی ہیں. یہاں ہندکوں میں مسکراتی ہے, گوجری میں دعا مانگتی ہے, پٹواری میں کہانیاں سناتی ہے, کوہستانی اور پہاڑی میں وقت کے ساتھ باتیں کرتی ہے, اور پشتوں میں غیرت کا اعلان کرتی ہے. اسی لیے صوبہ ہزارہ کا مطالبہ کسی ایک نسل کا نہیں, کسی ایک علاقے کا نہیں, کسی ایک قبیلے کا. رکھیں تو اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ہزارہ کے جتنے ریپریزنٹیٹیو اس ٹائم اسمبلیوں میں موجود ہیں ان سب کو اس فورم پہ بلائیں تاکہ ہم سب کا نقطۂ نظر, نقطۂ نگاہ اور پوائنٹ آف ویو سن سکیں کہ ہر بندہ کیا چاہتا ہے. اور جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوں گے, جب تک ہمیں یونٹی نہیں ہوگی, جب تک ہم اس بڑ مٹھی کی طرح نہیں ہوں گے, سوری ٹو سے ہم صوبہ ہزارہ حاصل نہیں کر سکتے. جب ایبٹ آباد میں پرامن احتجاج پہ گولیاں برسائی گئیں اور جس کے نتیجے میں ہمارے 7 لوگ شہید ہوئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے, ہم نے سڑکوں پہ شہیدوں کا خون بہتے بھی دیکھا, ہم نے جیلیں بھی کاٹی, ہم نے لاٹھیاں بھی کھائیں, لیکن پھر بھی ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. لیکن ایک آئین کے اندر رہتے ہوئے جس موقف کو ہم نے اپنایا, آج تک ہم اسے حاصل کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ یہ میرا آپ سب سے سوال ہے کہ اس موقف کو اپنانے کے لیے, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم ناکام کیوں ہیں؟ ہم نے قربانیاں دی مگر ہم تشدد کی سیاست کی طرف نہیں گئے. حکومت مرکز میں ہے, ہم مرکز میں اپنی حکومت سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آئین میں تبدیلی کر کے ہم عوام کی دیرینہ خواہش کو پورا کیا جائے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہم صرف آپ لوگوں کو لالی پاپ نہیں دینا چاہ رہے کہ میں جا کے کہہ دوں کہ ہم اسمبلی میں قرارداد پیش کر دیں گے. اس کے لیے بہت زیادہ ہوم ورک کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے کون سے ادارے فیڈرل میں آتے ہیں, وہ کتنی رائلٹی لے رہے ہیں اور ہمارے حصے میں کیا آتا ہے. اس تمام کے لیے ہوم ورک کرنے کی ضروری ڈفرینس یہ ہیومن سوسائٹی کے جو ادارے ہیں ان کو ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس قسم پہ تمام اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں اور ہمیں دیں. آگے اسمبلیوں میں آواز اٹھانا, نیشنل اسمبلی ہو کہ صوبائی اسمبلی ہو, اس میں آواز اٹھانا انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے. یہ آپ کا ہی نہیں ہمارا بھی ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ صوبہ ہزارہ بنے. اور میں اسی شعر کے ساتھ آخر میں اجازت چاہوں گی. خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے, خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اور شکریہ. میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ تحریک بندوق کی نہیں, یہ آئین کی تحریک ہے. اور یہ سوری میں ایک بات بھول گئی, بینگ ایڈوکیٹ میں یہ کہنا بھول گئی کہ پاکستان کا آرٹیکل 239, یہ ہماری جو تحریک صوبہ ہزارہ کی تحریک ہے, یہ آرٹیکل 239 کے اندر سے نکلتی ہے. ہمارا آئین کا آرٹیکل ہمیں صاف کہتا ہے کہ صوبوں کی تشکیل کا حق خود عوامی نمائندوں کے پاس ہے. یعنی راستہ تو ہمیں آئین نے دے دیا,
ये इसलिए ये तहरीक कोई बंदूक की तहरीक नहीं, ये शोर की नहीं, ये शहूर की तहरीक। एक और बात जो आज मुझे कंक्लूड करने के लिए कहा गया, थैंक यू वेरी मच ऑर्गेनाइजेशन जिसने इनवाइट किया। तो मसला ये है कि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, ना सियासी नहीं हूँ, तो मैं एजुकेशन के हवाले से ही बात करूँगी कि देखें 2012 में पार्लियामेंट ने भी थोड़ा सा एक एक्ट के ज़रिए 5 इलाकाई ज़बानें जो हैं वो उनका एक्ट मंजूर हुआ। 2013 में हम एजुकेशनिस्ट ने अपना हक अदा कर दिया और करिकुलम डेवलप कर दिया, किताबें भी ग्रेड 1 से ऑनवर्ड मान गई हैं। तो मुझे पिछले दिनों बड़ी तकलीफ हुई थी, एक स्कूल का, एक सिस्टम का स्कूल है, मैं नहीं कहना चाहूँगी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी हिंदू ज़बान की हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे, पश्तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है, दूसरे का भी पढ़ रहा है, तीसरे का भी पढ़ रहा है, मतलब मेरे बच्चे से मुराद ये है कि शायद मेरा नवासा हो। तो मैंने कहा कि पश्तो ये क्यों पढ़ रहा है ना, तो कि जी स्कूल ने कहा कि जी इनको जो है वो ज़रा गंवारों की ज़बान है, तो हम पश्तो जो है वो कहते हैं, गलत हूँ इस बारे में। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हरिपुर के जो बनाने वाला था उसको नहीं पता कि हरिपुर नाम का कोई शहर मौजूद है, तो नाम चेंज होना चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी अजीम वालिद जिनकी डेथ हो चुकी है उनका एक शेर कोट करूँगी कि तारीख मस्क होती है नामों के बदल से, तारीख मस्त होती है नामों के बदल से, रहने दो वही नाम जो रोज़े अज़ल से अच्छा।